Good morning, students. Good morning, Ma'am. So, can I start now? Yes, ma'am. Okay. So, today we'll discuss some more numericals related to scheduling. Just a second, I'm showing a whiteboard. Ma'am, also start the recording. Yeah.
So some processes are given: P1, P2, P3, and P4. The arrival time and burst time is also given. Now you have to calculate. Huh. Time quantum is 2 milliseconds. And you have to calculate average turnaround time, average waiting time, and average response time using round robin algorithm. Also calculate the number of context switches So this is the question. Now using round robin scheduling algorithm, you have to calculate all these three things. You know what is response time? Response time is the time at which the process gets the response for the first time. The first time किसी process को response मिलती है, CPU मिलता है, then that is known as response time. And the number of context switches you have to calculate. Note down the question and solve it.
Ma'am, average TAT 7.25 milliseconds, average waiting time 4.25 milliseconds, average response time 3 milliseconds. TAT Yes, क्या ma'am. है? फिर से रिपीट करो. 7.25 milliseconds. 1.25 milliseconds. Then waiting time 4.25 milliseconds. and response time, average response time 3 milliseconds. and context switches. Ma'am, 6. ये आंसर आ रहे हैं आपको. ठीक है, हम चेक कर लेते हैं. बाकी किसी ने सॉल्व किया है? Same, ma'am. सेम. Yes. So at time 0, how many processes are there in the ready queue? Only one, P1. तो P1 को हमने CPU P1 for 1 second के 2 quantum time quantum is given as 2. तो 2 milliseconds के लिए execute हुआ P1. ठीक है. Now remaining burst time is 3. Ma'am, हाँ बोलिए. ma'am, voice is not clearly audible. Okay. ठीक है. तो P1 executes for 2 milliseconds है ना. राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं हम. नाउ P2 अब आप चेक करोगे कि इस टाइम पे रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेसेस. हम एक रेडी क्यू का भी डायग्राम बना लेते हैं, आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना. दिस इज योर रेडी क्यू. वैसे मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, तो वैसे भी आप कर सकते हो. तो रेडी क्यू वैसे ही करते हैं हम जैसे करते हैं. ठीक है. तो 2 पे आप देखिए 2 मिलीसेकंड्स में कौन कौन सी प्रोसेसेस है रेडी क्यू में. P2 पर P2 has arrived and P3 also and P1 is also there. लेकिन P1 एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है. So we have P2 and P3 and then P1 भी रेडी क्यू में चला जाएगा. कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी यहाँ पर, उसका कॉन्टेक्ट सेव होगा यहाँ पर P1 का, और वो P1 अगेन रेडी क्यू में आ जाएगा. तो सबसे पहले P2 आया था 1 पर, देन P3 आया और उसके पीछे रेडी क्यू में P1 आ जाएगा. तो अभी हम एलोकेट करेंगे CPU किसको, P2 को 2 मिलीसेकंड्स के लिए. ठीक है. तो इट्स रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज 2. नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट 3. P2 का अभी भी रिमेनिंग टाइम है, तो यहाँ ये एग्जीक्यूट कर रहा है 6 तक. सॉरी, हाँ. तो यहाँ पर हमने P2 को ऑलरेडी P2 एग्जीक्यूट हो चुका है, तो P3 की टर्न आएगी. P3 ने भी 2 मिलीसेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया. तो यहाँ रेडी क्यू में कौन कौन आ चुका है. P1 था पहले तो हम ये चेक करेंगे, अराइवल टाइम चेक करते हैं. अराइवल टाइम चेक करते हैं 4 मिलीसेकंड्स में P4 ने भी अराइव किया था. यहाँ पर सबसे पहले P4 है रेडी क्यू में. P4 के बाद है P1, देन P2 P3 का चेक करते हैं. P3 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, देन P4. रेडी क्यू में यहाँ पर सॉरी P4, P1 एंड P2. Now CPU will be allocated to P4. So P4 will be executed for 2 milliseconds. The remaining burst time is for 1 milliseconds it will execute because its burst time is 1. ये 7 तक एग्जीक्यूट करेगा. Now again हम किसको CPU देंगे, P1. Remaining burst time is 3. ये 9 तक एग्जीक्यूट हुआ है. ये 0 हो गया. ये रिमेनिंग टाइम इज 1 और ये ऑलरेडी 0 हो चुका है. अगेन ये ठीक है. यहाँ तक गैंट चार्ट ठीक बनाया है.
Now we have to calculate all these things, है ना, TAT. TAT कैलकुलेट कैसे करते हैं? Completion time minus arrival time. हाँ, तो पहले हम कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं. कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो कब किसी प्रोसेस ने कंप्लीट किया. तो P2 ने 12 पे कंप्लीट किया है. मैम 12 पे P1 ने किया. ये P1 है क्या? ये P2 है? Yes, Yes, Sorry. ma'am, P1 हाँ, ये है। मैंने गलत, ये P1 है. मैम वो नहीं, एंड वाला P1 है, 9 से 11 तो P2 ही था। अच्छा, ये P2 था. ठीक है, तो P1 ने 12 पे कंप्लीट किया एंड P2 11. उसने 11 पे कंप्लीट किया. देन P3 has completed at 6 and P4 at 9, है ना? 7 मैम। सॉरी, हाँ 7. पर फिर से चेक करो, ये गैंट चार्ट सही बनाया है क्या? सही है सबसे मैम. पहले सही है. P1 ने एग्जीक्यूट किया, देन P2 ने एग्जीक्यूट किया, देन P3 आया, देन P4 आया. ये P4 सिर्फ 1 सेकंड के लिए होगा, तो ये 7 पे ही होगा. देन अगेन P1 से स्टार्ट करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, देन P2, देन P3 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है. ये P4 भी नहीं, सॉरी, P4 और P3 बाहर आ चुके हैं. ठीक है, P1 और P2 ही है हमारे पास. ठीक है, ये है ना. रिस्पॉन्स टाइम निकाला है, वो अराइवल टाइम हाँ. के रिस्पेक्ट में निकाला है। हाँ, तो एक मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ. TAT क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. देन वेटिंग टाइम इज TAT minus burst time, and response time is CPU first time जब मिलता है किसी प्रोसेस में, CPU first time minus arrival time. So this is response time. हम कैलकुलेट करते हैं TAT सबसे पहले. Completion time minus arrival time. So that is 12, 10, 4 and 3. Then waiting time 12 minus burst time. Yes. है ना? So that will be 7. This is 6, 2. ये ठीक है, चेक कर लिया. ये वेटिंग टाइम सही Yes. कैलकुलेट किया ना? यस मैम। Then we have to calculate response time. तो response time हम कब कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट टाइम CPU जब मिला माइनस अराइवल टाइम. तो P1 का चेक करिए, फर्स्ट टाइम CPU का मिला था 0 पर, और उसका अराइवल टाइम क्या था? 0 ही है. 0 minus 0 is 0. देन P2 का अराइवल टाइम है 1 एंड P2 को सेकंड मिली सेकेंड्स पे CPU मिला, तो 2 minus 1 is 1. देन P3 का अराइवल टाइम है 2 एंड उसको 4 मिली सेकेंड्स पे CPU मिला है, तो 4 minus 2 is 2. देन P4 का चेक करना है. P4 का अराइवल टाइम है 4 और फर्स्ट टाइम उसको 6 पे मिला है CPU, तो 6 minus 4 is 2. हम सबको सम अप करके एवरेज कैलकुलेट करेंगे. 5 divided by 4, this will be 10, 17 by 4, 29 by 4, है ना? तो ये आप कैलकुलेट किया तो क्या आंसर आ रहा है? 20. रिस्पॉन्स टाइम अलग होगा, बाकी तो सब सेम होगा। रिस्पॉन्स टाइम अलग आ रहा है आपका.
यस मैम, मैंने अराइवल टाइम के उसमें रिस्पेक्ट में नहीं करा अच्छा था। सेवन 7.25 then 17 divided by 4 4.25 ये भी सही है 5/4 1.25 this will be 1.25 milliseconds ठीक है इस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में रिस्पांस टाइम पूछा जा सकता है then we have to calculate the context switches how many context switches are there तो P1 देखिए हम कैलकुलेट करते हैं P1 जब फर्स्ट टाइम रन हुआ था यहाँ पर तो उसके बाद P1 का स्टेटस सेव किया तो एक P1 का यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई है ना एक कॉन्टेक्ट स्विचिंग ये होगी जैसे P2 पार आया तो P2 की कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो यहाँ पर होगी का स्टेटस सेव किया जाएगा 2 ये 2 कॉन्टेक्ट स्विचेस हो गए यहाँ तक देन P3 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है 5 6 आ रहे हैं आप लोगों के तो ये वाला स्टेटस तो सेव नहीं होगा बिकॉज P3 ऑलरेडी 2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट इसका बर्स्ट टाइम 2 है ना P3 इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट सेव करने की जरूरत नहीं है एक सेकंड 1 2 3 4 5 ठीक है तो ये बाहर आ जाएगा देन P4 एग्जीक्यूट होगा तो P4 का हम स्टेटस सेव करेंगे पीसीबी में रनिंग प्रोसेस का ही होता है जो प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेटेड हो चुकी है उनका पीसीबी मेंटेन नहीं किया जाता है ना तो P3 का मेंटेन नहीं होगा ये थर्ड होगा हो गया कॉन्टेक्ट स्विच देन P1 का फिर से तो कंप्लीट हो गया था क्या बोल रहे हो बेटा मैम जैसे P4 भी तो P3 कंप्लीट हो गया था तो उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं माना गया था तो मैम P4 भी तो कंप्लीट हो गया था 7 सेकंड पे 1 2 3 4 हाँ यहाँ से देखिए आप जैसे P1 हाँ ये एक हो गया कॉन्टेक्ट स्विच P2 का स्टेटस सेव हुआ देन P3 आप तो इसी तरह से चलते जाइए ठीक है लास्ट और फर्स्ट को छोड़ दीजिएगा तो टोटल 6 ही आ रहा है आंसर कॉन्टेक्ट स्विच इज इक्वल टू 6 ही करेक्ट है इसी तरह से कैलकुलेट करना वो मत देखिए कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं लेकिन आप फर्स्ट ये यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट स्विचिंग नहीं होगी जब पहली बार कोई प्रोसेस आएगी और लास्ट में जैसे ही सब कंप्लीशन हो जाएगा कंप्लीशन टाइम तो इसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे जो मिडिल है उनको इंक्लूड करोगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा पीडीएफ फाइल हाँ you can see the whiteboard now visible in screen यस मैम Yes, ma'am. Yes. some processes are given then some priorities are given we have to use priority scheduling algorithm
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, प्रोसेसेस दी हुई है, प्रायोरिटीज दी हुई है इनकी, और ये दिया है कि ये P1 को CPU यूज करना है 1 मिली सेकेंड्स के लिए, देन वो 5 मिली सेकेंड्स के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगेन 3 मिली सेकेंड्स के लिए CPU यूज करेगा। तो ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ है, ये CPU एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे in particular milliseconds के लिए, then again CPU उनको चाहिए in particular milliseconds के लिए, ठीक है। Now we have to calculate, we have to use priority scheduling algorithm, use algorithm to calculate completion time and turnaround time of all processes. So a process with low priority number has highest priority. इसका मतलब है कि जो 1 है उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ये जो आप 1 दिया हुआ है P3 की प्रायोरिटी 1 है, दैट मींस इट हैज हाईएस्ट, ये दिस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव होगी या प्रीएम्प्टिव? हाँ, ये मैं बता देती हूँ, दिस इज प्रीएम्प्टिव, यूज प्रीएम्प्टिव लिख देती हूँ। Use preemptive priority scheduling algorithm. मैम इसमें लास्ट 3 को ऐड करके बस टाइम लिख देंगे ना? नहीं, आप बीच में इनपुट आउटपुट के लिए जाओगे ना, मैं 2 मिली सेकेंड्स के लिए रन करोगे किसी प्रोसेस को, जो भी इनको सीपीयू दिया, फिर वो इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा। जब तक वो 3 मिली सेकेंड या 5 मिली सेकेंड्स कंप्लीट नहीं होंगे, वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हाँ, मतलब रेडी क्यू से आप उसको बाहर कर दोगे, ठीक है, रेडी क्यू से वो बाहर हो जाएगी प्रोसेस, जैसे वो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी। मैम सबका अराइवल टाइम 1 ही होगा? हाँ, you assume that all the processes arrive at the same time. Arrival time is not given.
मैम आपका माइक ऑन नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी मैम। मैम Yes. सबसे पहले देखिए गैंट चार्ट बना रहे हैं हम। P3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इट नीड्स CPU फॉर 2 मिलीसेकंड्स। तो ये 2 मिलीसेकंड्स पे यहाँ पे इसको CPU हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। P3 को अब 3 मिलीसेकंड्स के लिए IO परफॉर्म करना है, मतलब कि 2 + 3 5 मिलीसेकंड्स तक इसको CPU नहीं चाहिए। यहाँ पे अगेन P3 आ जाएगा रेडी क्यू में। ठीक है ना। यहाँ पर P3 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। P3 के बाद हम चेक करेंगे किसकी प्रायोरिटी है ज्यादा। P3 के बाद प्रायोरिटी है इसकी P1 की, एंड P1 को 1 मिलीसेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करना है, मतलब 2 से 3 तक P1 एग्जीक्यूट होगा। देन इसको 5 मिलीसेकंड्स के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। 5 + 3 8। यहाँ पर P1 अगेन रेडी क्यू में एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, यहाँ ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। नाउ देयर इज P3 इज आल्सो नॉट देयर, P1 भी जा चुका है बाहर। P1 P3 देन विल चेक द प्रायोरिटी P2 और P4 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P2 की। तो P2 को हमने CPU असाइन किया। CPU को चाहिए 3 मिलीसेकंड्स के लिए, तो ये 2 मिलीसेकंड्स ही एग्जीक्यूट होगा, यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा ये, ठीक है। 2 मिलीसेकंड्स ही एग्जीक्यूट करेगा। उसी टाइम पर इससे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है P3 वो रेडी क्यू में अगेन आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको बीच में ही प्रीएम्प्ट करेंगे। P2 को हमने बीच में प्रीएम्प्ट किया, तो ये कितने मिलीसेकंड्स इसके बचे हुए हैं, 1 मिलीसेकंड।
अब इसका ये बचा हुआ, ठीक है। तो देन P3 को P3 1 मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये P3 जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ इस टाइम पे देखिए अब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कौन कौन सी है। P1 अभी आया नहीं है, P3 बाहर निकल चुका है, देन वी हैव P2 एंड P4। वी हैव टू प्रोसेस एट दिस टाइम, P2 एंड P4। P2 और P4 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P2 की ज्यादा है। हम अगेन P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ 1 मिली सेकेंड्स के लिए इसको एग्जीक्यूट होना है। ये 1 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा यहाँ। इसके बाद ये अपने इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा P2, और इनपुट आउटपुट के लिए 3 मिली सेकेंड्स के लिए ये जा रहा है, ठीक है। तो ये 7 + 3 दैट इज 10। यहाँ पर अगेन P2 फिर से आएगा रेडी क्यू में, ठीक है। यहाँ ये P2 ने 7 पे देखिए आप, P3 ऑलरेडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, बाहर आ गया है। देन वी हैव P2 भी बाहर निकल चुका है इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। देन वी हैव P1 एंड P4। सॉरी, P1 भी अभी आया नहीं है, इनपुट आउटपुट कंप्लीट करके 8 मिली सेकेंड्स पे अराइव होगा। वी हैव ओनली वन प्रोसेस दैट इज P4। P4 को चाहिए 2 मिली सेकेंड्स के लिए CPU। तो P4 को हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये 1 ही मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसी टाइम पे इससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में P1 आ रही है, ठीक है। तो हमने P4 को बीच में ही प्रीएम्प्ट कर दिया, तो P4 अभी उसका 1 मिली सेकेंड बचा हुआ, ठीक है। अगेन P1 की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, P1 की प्रायोरिटी है 2, तो P1 को एग्जीक्यूट किया। कितने सेकेंड्स के लिए करना है हमें, कितने मिली सेकेंड्स के लिए? P1 को देखिए 3 मिली सेकेंड्स के लिए CPU अभी चाहिए, और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि P3 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की है, P1 की। तो P1 को हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे 11 तक, ठीक है। ये P1 पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा और P1 भी बाहर आ जाएगा। एक मिनट, P3 को इनपुट आउटपुट के लिए हमने P3 यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए गया था, है ना? कितने मिली सेकेंड्स के लिए? 3 मिली सेकेंड्स के लिए, तो 6 प्लस वापस आ गया था, आ चुका है। अच्छा, ये आ चुका है, सॉरी, वापस आ गया था। ठीक है, ठीक है। तो P3 तो देन यहाँ पर 11 पर एक सेकेंड, मैम 11 सेकंड के बाद हाँ, P2 P4 हमें बचे। P4 को चेक करना है। कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो P1 भी बाहर आ चुका है, कंप्लीटली हो चुका है, ये भी बाहर है, ठीक है। और P3, अब वी हैव ओनली 2 प्रोसेस, P2 एंड P4। चेक करते हैं इस टाइम पे 11 पे P2 ने एंट्री की थी, है ना? P2 ने एंट्री की और P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम P2 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से। कितने मिली सेकेंड्स के लिए करेंगे P2 को? 1 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। 12 तक एग्जीक्यूट हुआ। नाउ व्हाट अबाउट P4? P4 का चेक करिए, P4 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ है अभी तक, इसको 1 मिली सेकेंड और चाहिए P4 को, है ना? Yes. देन इसके बाद वो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा 4 मिली सेकेंड्स के लिए, 14, 15, 16, 17। यहाँ पर वो अपने इनपुट आउटपुट करेगा, अगेन वो आ जाएगा यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए। P2 कंप्लीट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया P2 का भी ना, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से गैंट चार्ट बनेगा आपका, ठीक है। ये क्लियर है कैसे हम बना रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्लियर है आपको कैसे बनना है? एक बार और बता, नहीं आया। नहीं आया समझ में? देखो, ये here arrival time is not given in this question, so we'll assume that at zero time all the process will arrive in the ready queue, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ चुकी हैं। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, P1, P2,
P3 एंड P4। तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसका लोअर नंबर है वो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 की है, तो P3 को हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, P3 कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा। जो इसका पहला सीपीयू दिया हुआ, मतलब पहले टाइम सीपीयू उसको चाहिए था 2 मिलीसेकंड्स के लिए, तो 2 मिलीसेकंड्स के लिए हमने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ 2 पर वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चला जाएगा। 3 मिलीसेकंड्स के लिए उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। दैट मींस 2 + 3 दैट मींस 5 पे दोबारा P3 एंट्री करेगा रेडी क्यू में। अभी वो रेडी क्यू से बाहर जा चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ तक एग्जीक्यूशन हुआ। अब इस टाइम पे आप रेडी क्यू चेक करिए क्या क्या है। रेडी क्यू में P2 है, P3 एंड P4, क्योंकि सॉरी P1 है, P2 है, P1, P2 एंड P4 है रेडी क्यू में एग्जीक्यूट होने के लिए। हम तीनों की प्रायोरिटी चेक करिए किसकी ज्यादा है, तो P1 की ज्यादा है, सबसे लोअर नंबर इसी का है इन तीनों में से। हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज क्योंकि P2 और P4 की उससे ज्यादा प्रायोरिटी है P1 की। तो P1 को हमें कंप्लीट एग्जीक्यूशन कितने सेकंड्स, मिली सेकंड्स के लिए करना है? 1 के लिए करना है। तो 1 मिली सेकंड के लिए हमने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया 2 से 3 तक। ठीक है, यहाँ पर वो अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए P1 चला जाएगा। कितने मिली सेकंड्स के लिए चला जाएगा P1? 5 मिली सेकंड्स के लिए। दैट मीन्स 3 + 5 = 8। यहाँ 8 पर दोबारा एंट्री करेगा रेडी क्यू में, है ना। P3 करेगा 5 पर और P1 दोबारा एंट्री करेगा रेडी क्यू में 8 मिली सेकेंड पे। अब इस टाइम पे आप चेक करिए 3 मिली सेकेंड्स पे कौन कौन सी प्रोसेसेस है रेडी क्यू में एग्जीक्यूट होने के लिए। P1 और P3 दोनों अपने इनपुट आउटपुट करने के लिए चले गए। वी हैव ओनली P2 एंड P4। तो P2 और P4 में से देखिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो P2 की ज्यादा है, तो P2 को हमने एग्जीक्यूट किया। कितने सेकंड्स के लिए चाहिए इसको? 3 मिली सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होना है, लेकिन हम 2 तक ही कर पाएंगे, यहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे। उसी टाइम पे P3 ने अपना दोबारा एंट्री कर लिए इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के बाद। तो इस टाइम पे एट 5 मिली सेकेंड्स वी हैव 3 प्रोसेसेस, P2, P4 एंड P3, और P3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो P3 को हम अगेन एक जो उसका मिली सेकेंड, सॉरी ये जो उसका 1 मिली सेकेंड है, ये जो रिमेनिंग टाइम ये जो बचा है, फिर से इसको जो सीपीयू चाहिए था, तो 1 के लिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ तक 6 तक, और फिर इसके बाद ये बाहर आ गया रेडी क्यू से। तो इस टाइम पे आप देखोगे तो सिर्फ बचा है P2 एंड P4। ठीक है, P2 और P4 में से चेक करिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। P2 की ज्यादा है, तो P2 को हमने एग्जीक्यूट किया। कितने के लिए हमें एग्जीक्यूट करना है? ऑलरेडी 2 के लिए तो एग्जीक्यूट हो चुका है, 1 बचा था इसका, तो 1 के लिए इसने एग्जीक्यूट किया। ये भी अपना इनपुट आउटपुट करने के लिए चला गया है P2 को कितने सेकंड्स के लिए इनपुट आउटपुट करना है? 3 मिली सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर जब P2 ने कंप्लीट किया तो ये 7 + 2 = 9, है ना? नहीं, 3 मिली सेकंड्स के लिए करना ना, तो 7 + 3 = 10। तो 10 मिली सेकंड्स पे दोबारा रेडी क्यू में एंट्री करेगा। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है रेडी क्यू में? यहाँ पर वी हैव ओनली P4, है ना। तो P4 है तो हम P4 को एग्जीक्यूट कर देंगे, और P4 को 2 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट करना हम एक ही कर पाएंगे। उसी टाइम पे 8 मिली सेकेंड्स पे आप देखो P1 ने अपनी एंट्री कर ली है, और P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है P4 से, तो P4 को बीच में प्रीएम्प्ट करके हमने P1 को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, आप चेक करोगे P1 की सबसे ज्यादा है, क्योंकि P3 तो बाहर आ चुका है, तो P1 को आपने कंप्लीटली यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया। कितने सेकंड्स के लिए? 3 जो इसका रिमेनिंग, ये जो सेकेंड टाइम सीपीयू चाहिए था, तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट करके ये भी बाहर आ गया। अब यहाँ पर आप चेक करोगे अब कौन कौन सी प्रोसेसेस बची हुई है। P3 और P1 तो बाहर आ चुके हैं, वी हैव ओनली P2 एंड P4, ये 2 बची हैं, है ना। और P2 दोबारा एंट्री कर चुका है, और P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है P4 से, तो P2 को भी हमने एग्जीक्यूट किया। उसके रिमेनिंग टाइम जो ये सेकंड टाइम इसको सीपीयू 1 सेकंड के लिए चाहिए, तो उसने 11 से 12 तक एग्जीक्यूट किया। तो इस मिली सेकंड पे सिर्फ P4 है आपके पास। P2 भी कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके बाहर आ गया। P4 को चाहिए कितने? 1 मिली सेकंड उसके बचे हुए थे, एक वो पहले भी एग्जीक्यूट कर चुका है यहाँ पर, तो उसने एक एग्जीक्यूट करके वो चला गया अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कितने मिली सेकेंड्स के लिए? 4 मिली सेकेंड्स के लिए। 13 + 4 = 17। यहाँ दोबारा P4 पे एंट्री करेगा और बचा हुआ अपना
एक जो मिली सेकेंड है उसको कंप्लीट करेगा। इस तरह से गैंट चार्ट बनना है। अब है कोई डाउट? मैम P2 मैम? 10 पे हाँ बोलिए। मैम P2 10 पे आया तो मैम प्रीएम 2 है तो P2 नहीं प्रोसेस करेगा CPU। 10 पर आया था ना? हाँ। P2 P1 की प्रायोरिटी लेकिन ज्यादा थी ना। P1 की 2 थी और P2 की 3 थी, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इन दोनों में से? P1 की है ना ज्यादा। यस मैम। तो P1 तो हम कंप्लीट एग्जीक्यूशन करवाएंगे, बीच में नहीं प्रीएम्प्ट करेंगे, क्योंकि P2 की तो लोअर प्रायोरिटी, अगर वो आ भी गया रेडी क्यू में लेकिन उसकी प्रायोरिटी तो कम है ना P1 से, तो P1 का हम कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेंगे। प्रायोरिटी को भी चेक करना है, प्रीएम्प्टिव भी है। नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है? और भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन और। मैम हाँ बोलिए। मैम इसमें आईओ सिस्टम मल्टीपल है, मतलब कि मतलब P3 2 से 5 तक आईओ का यूज कर रहा है तो P2 भी 3 से 8 तक यूज कर रहा है कर सकता है IO वो का। अपने, वो किसी और फाइल पे कुछ रीड कर रहा होगा। इनपुट आउटपुट का मतलब कि वो अपना कुछ रीडिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फाइल पे, कोई प्रोसेस, जैसे आपने सी का प्रोग्राम लिखा, आप किसी एक प्रोग्राम में आप कुछ एडिशन कर रहे हो, दूसरे प्रोग्राम में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी फाइल को रीड कर रहे हैं हार्ड डिस्क से, तो उससे क्या लेना देना है? वो तो अपना अपना अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब इनपुट आउटपुट मतलब फेच वाले हाँ ऑपरेशंस। हाँ, मतलब रीडिंग भी हो सकती है, किसी फाइल को रीड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है यूजर से इनपुट लेने के लिए वेट कर रहे हो। जैसे आपने सी का प्रोग्राम लिखा, ए प्लस बी किया आपने, तो ए और बी की वैल्यू आपको यूजर से इनपुट करवानी है, तो ये भी एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया, आउटपुट ऑपरेशन। अब प्रोसेस वेट कर रही है कि जैसे ही आउटपुट आएगा उसके बाद उन नंबर्स पे प्रोसेसिंग करेगी। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सबके डिफरेंट हो सकते हैं हर एक प्रोसेस पे। ठीक है, now we have to calculate the completion time of all these processes. तो P1 चेक करिए कब कंप्लीट हो रहा है। P1 is completing at 11, 11 P2 at 12, P3 at 6 6 and P4 at 18। ये आपका CPU आइडल रहेगा इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहा है CPU, क्योंकि देयर इज नो प्रोसेस इन द रेडी क्यू। ये सब हर एक प्रोसेस का हमें क्या कैलकुलेट करना था? कंप्लीशन टाइम और TAT। TAT निकालते हैं। सेम ही होगा क्योंकि अराइवल टाइम सबका 0 ही है। हाँ, तो TAT कैसे निकालते हो? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, देन CPU आइडल टाइम भी अगर पूछते तो क्या होता है? CPU आइडल टाइम कितने सेकंड्स है? ये 4 सॉरी 4 मिली सेकेंड इज द आइडल CPU आइडल टाइम। सेम क्वेश्चन करते हैं हम अराइवल टाइम के साथ। ठीक है, आप लोग सॉल्व करना, आपकी जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं विद अराइवल टाइम। We have 4 processes, P1, P2, P3 and P4, and their arrival time is also given. Zero two 2 3 1 4। One five three 3 3 1 2 4 1।
Using priority preemptive priority scheduling algorithm. और जिस जो लोअर नंबर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P3 की है. Process P3 has highest priority. ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, so at time 0 we'll check कि कौन कौन सी प्रोसेसेस अराइव हो चुकी है. We have only one process, that is P1. ठीक है, तो रेडी क्यू में अभी इस टाइम पर ओनली वन प्रोसेस इज देयर, P1. तो हम देयर इज नो नीड टू चेक प्रायोरिटी बिकॉज एक ही प्रोसेस है तो उसकी प्रायोरिटी आप चेक नहीं करोगे. तो यहाँ सिंपली क्या करोगे, 1 मिली सेकेंड्स के लिए इसको सीपीयू चाहिए, यू विल असाइन. अब दिस इज प्रीएम्प्टिव, सो यू हैव टू चेक आफ्टर ईच एंड एवरी सेकेंड. यहाँ वन तक इसने एग्जीक्यूट किया है P1 में. ठीक है, नाउ विल चेक कि यहाँ पर at 1 milliseconds how many processes have arrived in the ready queue. So we have P1 also, क्योंकि P1 एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है. ठीक है, ये एक बार एग्जीक्यूट. अब इस एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है तो P1 तो रेडी क्यू से बाहर आ गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए चला गया है ना. देन वी हैव P2 ने भी 1 पे तो उसने भी अराइव नहीं किया, P3 ने भी नहीं किया, P4 ने भी किया. तो कोई भी प्रोसेस अभी यहाँ पर 1 पे नहीं है रेडी क्यू. अब हम 2 के लिए चेक करते हैं. टू मिली सेकेंड्स में आपको चेक करना है रेडी क्यू में, रेडी क्यू का क्या स्टेटस है. तो P2 ने अराइव कर लिया यहाँ पर. ठीक है, और P2 ने अराइव किया है तो P2 इज द ओनली प्रोसेस, तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम 1 मिली सेकेंड के लिए. ठीक है, तो P2 का रिमेनिंग टाइम क्या हुआ? 2. नाउ टाइम 3 यू हैव टू चेक द रेडी क्यू. तो 3 पर ये सारी की सारी प्रोसेसेस अब अराइव हो चुकी है. ठीक है, तो वी हैव P1 तो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया 5 मिली सेकेंड्स के बाद आएगा, तो दैट इट विल कम आफ्टर. मैं लिख देती हूँ हमारी प्रोसेस अगेन कब आएगी रेडी क्यू में इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के बाद. 4 5 6 7 9 10. ठीक है, तो P1 को 5 मिली सेकेंड्स के लिए इनपुट आउटपुट करना, तो यहाँ पर वो 1 से 1 + 5 कर दीजिए 6. तो अगेन यहाँ पर P1 will again arrive in the ready queue. ठीक है, देन P2 को हमने एग्जीक्यूट किया है 1 मिली सेकेंड्स के लिए. अब आपको रेडी क्यू अगेन 3 मिली सेकेंड्स पे चेक करना, तो वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 3 मिली सेकेंड्स पे क्या क्या है रेडी क्यू में. P2 का रिमेनिंग टाइम है अभी ये बचा हुआ है 2 मिली सेकेंड्स बचे हुए, तो P2 भी है रेडी क्यू में. देन वी हैव P3 ऑल्सो एंड P4 ऑल्सो. तो आपको इन तीनों में से ये चेक करना है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. P2, P3 और P4. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? 1 P3 की है ना. इसकी प्रायोरिटी 1 है, तो हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की प्रायोरिटी है. तो P3 को एग्जीक्यूट किया, कितने सेकेंड्स के लिए करना है? 2 के लिए करना है. तो इट विल एग्जीक्यूट टिल 5.
यहाँ तक P3 ने कंप्लीट एग्जीक्यूशन किया। और अगेन P3 अब चला गया कहाँ पर, अपने इनपुट आउटपुट करने के लिए 3 मिली सेकेंड्स के लिए। तो 5 + 3 is 8, तो 8 at 8 milliseconds again P3 will arrive। ठीक है, अब 5 मिलीसेकेंड्स पे रेडी क्यू चेक करिए, यहाँ पर क्या क्या है रेडी क्यू में। यहाँ पर P1 और P3 तो जा चुके हैं, we have only 2 process P2 and P4। अगेन हमें चेक करना होगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P2 और P4 में से। तो 3 and 4, तो P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है। P2 को आपने यहाँ एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 1 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करोगे। फिर अगेन 6 पे चेक करना होगा जब रेडी क्यू में क्या क्या है। रेडी क्यू में P1 भी अराइव हो चुका है। तो वी हैव 3 प्रोसेस P1, P2 एंड P4। और P2 का रिमेनिंग टाइम था 2, ठीक है, 1 मिलीसेकेंड ही एग्जीक्यूट हुआ। अब अगेन आपको प्रायोरिटी चेक करना है P1, P2 एंड P4 की। 2, 3 एंड, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P1 की ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हमने बीच में ही प्रीएम्प्ट कर दिया, यहाँ पर P1 की ज्यादा है। तो P2 का भी रिमेनिंग टाइम क्या बचा है, 1 हमने फिर से एग्जीक्यूट किया तो 1 बचा है ना। और यहाँ पर P1 को CPU मिला। देन P1 को हाउ मेनी P1 अपना इनपुट आउटपुट करके आ चुका है। अब P1 को 3 मिलीसेकेंड्स तक, 3 मिलीसेकेंड्स के लिए CPU चाहिए, है ना, 3 मिलीसेकेंड्स के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, अगेन हम एक एग्जीक्यूट करने के बाद 7 पे चेक करेंगे। 7 पे क्या होगा, 7 पे चेक करेंगे प्रायोरिटी। तो P1, जी सर, हाँ, ठीक है। सो P1 को एग्जीक्यूट करने के बाद 7 पे चेक करोगे तो P1 से ज्यादा प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ P3 है। और P3 अभी रेडी क्यू में आई नहीं है, तो आप इसको यहाँ तक पूरा एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, P1 को। तो P1 का रिमेनिंग टाइम क्या बचा है, 1 बचा है यहाँ पर। और यहाँ पर सेकंड पे P3 भी तो आ जाएगी, 7th पे आ जाएगी मैम P3। P3 का हमने लिखा नहीं है ना, इसको भी लिखना है। P3 अभी गया ही, P3 गया ही नहीं है ना अभी इनपुट आउटपुट करने। यस मैम, नहीं, यहाँ पर जाएगा ना 2 मिलीसेकेंड्स के बाद। P3 8 सेकंड पे वापस आ रहा है। हाँ, तो देखो P3 यहाँ पर चला गया था इनपुट आउटपुट के लिए। हाँ, तो P3 लेकिन 8 पर आएगा ना, वहाँ पे सभी तो है ही नहीं P3 पिक्चर में। तो 8 पे अगेन आपने P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया, क्योंकि P1 का भी एक बचा हुआ है मिलीसेकेंड, लेकिन बीच में प्रीएम्प्ट कर दिया क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी की प्रोसेस आ चुकी है, P3 आ चुकी है सॉरी। तो P3 को हमने फिर एग्जीक्यूट किया। P3 को एग्जीक्यूट किया, सिर्फ 1 मिलीसेकेंड्स के लिए इसको एग्जीक्यूट होना है। ये इसको आपने कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और ये रेडी क्यू से बाहर आ चुकी है, सॉरी टर्मिनेट हो चुकी है प्रोसेस P3, ठीक है। अब 9th पे चेक किया हमने। 9th पे हमारे पास क्या क्या है रेडी क्यू में, बताइए क्या क्या है। P1 है, P1 का एक बचा हुआ है। देन वी हैव P2 बचा है क्या, P2 का 1 सेकेंड ये वाला बचा हुआ है, तो P2 भी है। देन P4 अभी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, P4 भी है रेडी क्यू में। 3 प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों की प्रायोरिटी चेक करेंगे, P1, P2 एंड P4 की। तो P1, P2, P4 में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P1 की है, और इसको 1 सेकेंड ही चाहिए। तो यहाँ तक P1 भी एग्जीक्यूट हो चुका है कंप्लीटली, और ये कंप्लीट बाहर आ चुके हैं, 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। 10th पे चेक किया हमने यहाँ पर, तो वी हैव ओनली P2 एंड P4 इन द रेडी क्यू, ठीक है। P2 एंड P4 और P4 की प्रायोरिटी चेक करेंगे। 3 और 4 है इनकी प्रायोरिटी, P2 की सबसे ज्यादा है 3, तो P2 को हमने एग्जीक्यूट किया। P2 को कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूशन चाहिए, सिर्फ 1 मिलीसेकेंड के लिए, क्योंकि इसके बाद इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए बाहर जाना है, ठीक है। ये 11th पे ये अपना इनपुट आउटपुट करने के लिए चला गया 3 मिलीसेकेंड्स के लिए। तो 11 + 3 is 14। यहाँ पर ये 14 पे फिर से वापस आएगा P2, ठीक है।
देन वी हैव ओनली वन प्रोसेस P4 बचा है, तो P4 को हम CPU 2 मिली सेकेंड्स के लिए चाहिए, तो 2 मिली सेकेंड्स के लिए हमने CPU इसको दे दिया P4 को। अब P4 भी अपना इनपुट आउटपुट करने चला गया है 4 मिली सेकेंड्स के लिए, तो दिस इज 13 प्लस 4 इज 17 है ना, 15 16 एंड 17। यहाँ पर अगेन P4 वापस आएगा, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ CPU आइडल रहेगा बिकॉज देयर इज नो प्रोसेस इन द रेडी क्यू। हमने P2 को एग्जीक्यूट किया, P2 आ चुका इनपुट आउटपुट करके, और इसको सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए CPU चाहिए, तो यहाँ तक P2 को भी एग्जीक्यूट कर दिया कंप्लीटली, ये भी बाहर आ गया P2। देन वी हैव P4, लेकिन P4 अभी आया नहीं है, अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट करके 17 मिली सेकेंड्स पे आएगा, वो 17 पे जैसे ही आएगा उसको 1 मिली सेकेंड के लिए CPU मिलेगा और ये भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। दिस इज द गैंट चार्ट ऑफ दिस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। So by looking at the Gantt chart, you can tell what is the completion time of P1, that is 10. Then P2 का completion time of 15. P3 9. And P4 is completing at 18. ये ठीक लिखा है ना मैंने? Now TAT कैलकुलेट करते हैं। TAT कैसे निकालते हो? Completion time minus arrival time. 10, this 10 minus 0, then 15 minus 2 is 13, 9 minus 3 is 6, 18 minus 3 is 15. Then we have to calculate the waiting time. Waiting time निकालने के लिए हम क्या करते हैं? Turn around time minus जितने टाइम वो CPU यूज कर रहा है ना? लेकिन बीच में इसका बर्स्ट टाइम भी तो हो जाएगा, इनपुट आउटपुट भी तो आ जाएगा, उसको भी तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे वो वेट थोड़ी ना कर रहा है, वो तो अपना आई कर रहा है। तो यहाँ पे आप गैंट चार्ट को देखिए, P1 को कितना वेट करना पड़ा, यहाँ हम चेक करते हैं। P1 में 1 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट किया यहाँ पर, और ये इनपुट आउटपुट करने के लिए चला गया था, तो P1 ने कोई वेट नहीं किया, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट स्लॉट में कोई वेट नहीं किया। 1 पे इसको इसका अराइवल टाइम 0 था, 0 पे इसको CPU मिला, उसको 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करके इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो यहाँ कोई इसका वेटिंग टाइम नहीं। देन 5 पे जब वो आया था यहाँ पर, तो P1 आया, P1 को CPU के लिए वेट करना पड़ा था क्या? नो, है ना। गैंट चार्ट पे देखिए सीधे उसको CPU मिल गया, तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 0। देन P2 का चेक करते हैं। P2 हैज अराइव्ड एट 2, यहाँ पर अराइव किया उसने P2, और इसी टाइम पे इसको CPU मिल गया था, है ना मैम? मैम P1 8 to 9 पे वेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर वेट P3 प्रीएम्प्ट कर दे रहा है वहाँ पे। यहाँ तो उसने कोई वेट नहीं किया 1 से 5 के बीच में, है ना। 5 से 3 के बीच में चेक करते हैं। 5 पे जब यहाँ पर आया, सम करके हाँ, हम CPU और IO सही सम करके वो माइनस कर देंगे तो भी 9 1 आ जाएगा। नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपको? इन सबको ऐड करना है, देन TAT से माइनस कर दो। TAT माइनस दिस ऑल टाइम ना, दिस इज 8 9, 10 minus 9 is 1। सिमिलरली हम यहाँ पर भी चेक करते हैं। 3 plus 3 is 6, then 7 13 minus 7 is 6। ठीक है, गैंट चार्ट में चेक कर लेते हैं 6 ही आ रहा है क्या। तो P2 हैज अराइव्ड एट 2, तो उसने यहाँ 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट किया, 2 मिली सेकेंड यहाँ उसने वेट किया, यहाँ पर ये 2 मिली सेकेंड वेटिंग टाइम हो गया। देन अगेन P2 ने अराइव किया था, ये 2 हो गया। देन 3 4 5 6 के लिए वेट किया यहाँ 6। फिर हाँ, उसका वेटिंग टाइम आप गैंट चार्ट से भी चेक कर सकते हैं, 6 ही आ रहा है। सिमिलरली हम इसका कैलकुलेट करते हैं। 2 plus 3 is 4, सॉरी 5 plus 1 6, 6 minus 6 is 0। मतलब P3 ने कोई वेट नहीं किया, इसका वेटिंग टाइम 0 है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा था इसलिए इसने कोई वेट नहीं किया होगा। देन 4 plus 2 6, 7 minus 15 8, दिस इज द वेटिंग टाइम। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है।
और सीपीयू आइडल कितने टाइम बैठा है? 2 सेकंड्स या 1 सेकंड, 3 मिली सेकंड्स में सीपीयू आइडल है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको। मैम सीपीयू 4 के लिए आइडल है, 1 से 2 के लिए भी आइडल था। यस मैम, यस मैम। कहाँ पर? ये हाँ 1 से, हाँ यहाँ भी तो है, राइट यहाँ पर भी है, ये है और यहाँ पर भी, मतलब 4 आंसर है ना, दिस विल बी 4 मिली सेकंड। ठीक है, और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया लास्ट क्लास में जो मैंने दिया था? Did we solve that question? वो कुछ दिया था मैंने, consider and process sharing the CPU to context switches, दिए थे कुछ इस तरह का क्वेश्चन। Have you done that question? किसी ने किया है? अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया। वो क्वेश्चन अगर नहीं किया तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? एंड वन थिंग मोर, हाँ जो मैंने बताया था आपको लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में, जो हम स्टारवेशन की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो उसमें स्टारवेशन होता है, पॉसिबल है स्टारवेशन, क्योंकि आप लोग यही बोल रहे थे ना स्टारवेशन इसमें पॉसिबल। क्योंकि क्या होगा अगर लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को हम देखेंगे और अगर ज्यादा बर्स्ट टाइम की प्रोसेस अराइव होती जाएंगी, तो जो लो बर्स्ट टाइम की प्रोसेस है उनको इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, उसमें भी पॉसिबल होता है स्टारवेशन। ठीक है, so we'll meet tomorrow and start with some new topic, synchronization. Thank you so much all of you. थैंक यू मैम। Okay. हम तो सुबह वाली क्लास होगी कि नहीं? नहीं, सुबह वाली नहीं होगी, मैं आपकी वो कंटिन्यू कर दूंगी ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है? क्योंकि कोई अननेसेसरी सुबह आप लोग ऐसे लेट ज्वाइन करोगे फिर अटेंडेंस में मुझे टाइम लगता है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपका कंटिन्यू कर लूंगी लंबा 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? तो आपकी क्लास होगी 11:30 पर होगी और 1 o'clock या 1:15 तक क्लास चलेगी। 1 o'clock तक। ओके।